السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہ نہایت عمدہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم سے آشنا ہوں۔ بدیہ اسلامک سینٹر کی جانب سے اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں میں سید ایوب عمری، دائی و مترجم مکتب جالیات البدیعہ، آپ کے سامنے جو عقید توحید سے متعلق جو سلیبس ہے وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کتاب و سنت کا یہ فہم آسان کر دے اور ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے۔ تو محترم سامعین، لیول 1 اور لیول 2 میں آپ نے عقید توحید کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کی جو معنی و مفہوم، اس کی شرائط، ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ تمام چیزیں آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا عقید توحید کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کہتے ہوئے ہم آج کے درس کی طرف آئیں گے۔ محترم سامعین، عقید توحید کی اہمیت جو ہے وہ دین اسلام میں بنیادی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اس کے بغیر اگر کسی شخص کے پاس عقید توحید نہیں ہے اور وہ بہت بڑا نیک بندہ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ پورے اکارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، یعنی اس کا قیامت کے دن اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین نے پہلا حکم جو بنی نوع انسانیت کو دیا ہے وہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ جن و انس کی جو تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی وہ مقصد اساسی ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، جن کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنی قوم کی طرف جا کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلائیں، اللہ توحید کی دعوت دیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ہم نے رسول کو، انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور شیطان کی پرستش سے روکے رکھیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ میں ہی معبود برحق ہوں اور میری عبادت کی جائے۔ محترم سامعین، یہی مقصد کو لے کر انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس گئے اور اپنی قوموں کو دعوت دی، اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود برحق کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے جتنے پیروکار تھے سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو، قریش کو، سب سے پہلے توحید ہی کی طرف بلایا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وفود آپ نے بھیجے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دوسری قوموں کی طرف، تو آپ نے سب سے ان کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیں۔ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، فقہاء، علماء، ائمہ حق کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے۔ ان باتوں سے آپ کو عقید توحید کی اہمیت واضح ہو چکی ہوگی کہ عقید توحید اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے سمجھے نجات ہے، اگر نہیں ہے کسی کے پاس
वो पहाड़ों के बराबर भी अमल लेकर आएगा तो क़यामत के दिन उसको हबा मंसूरा कर दिया जाएगा, यानी उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो इसी से जड़ी कड़ी जो है वो तौहीद का ज़िद जो है वो शिर्क है, जो आज हम दर्स में पढ़ेंगे इस ताल्लुक़ से। शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क का माना क्या है, वो किस तरीके से तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। तो जो सिलेबस है आपका लेवल, जैसा कि ये लेवल 3 है, लेवल 3 का पहला दर्स है ये, तो आपके पास आपके ग्रुप में सिलेबस आपका पहुंच चुका होगा। अगर आप सिलेबस खोल कर पढ़ना चाहें तो खोल कर पढ़ें, वैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर जो सफ़ा आ रहा है वो वाज़े है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको सवाल वगैरह है उस ताल्लुक़ से तो मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, सैयद अय्यूब उमरी बोलकर, तो वहाँ से आप सवालात कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए आपको तो फिर पूछें, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम उसको और वाज़ेह करके बताएंगे, या नहीं तो पर्सनल पर आपको भेज दिया जाएगा। तो देखिए पहला लेसन है शिर्क। शिर्क की तारीफ, यानी किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला के रब और इला होने में शरीक बनाया जाए, यानी अल्लाह का पार्टनर बनाया जाए, अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह ताला का हक दिया जाए, इसको कहते हैं शिर्क। यानी तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत में गैरुल्लाह को अल्लाह ताला का शरीक बनाया जाए। तौहीद उलूहियत आपके सामने आगे आएगी बात, ये तौहीद रुबूबियत ये भी आएगी। तौहीद उलूहियत यानी अल्लाह के हकीकी माबूद होने में शिर्क का वक़ू ज़्यादातर होता है। आज आप देखें जो कुफ़ार हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हैं, वो क्या करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ क्या है कि उसी की इबादत की जाए, वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ किसी और को देते हैं, पत्थर को देते हैं, मूर्ति को देते हैं, सूरज को, चाँद को, पता नहीं जानवर को, पता नहीं किन किन को ये हक़ देते हैं। ये हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ क्या है कि उसी की इबादत की जाए, लेकिन वो हक़ किसी और को देते हैं तो ये तौहीद उलूहियत में शिर्क कहा जाएगा। इसी तरीके से जिससे मिसाल इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को पुकारा जाए या गैरुल्लाह के लिए इबादत की किस्मों में से चंद किस्में बजा लाई जाएं। यानी एक यहाँ मुसलमान है, वो कहता है मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, ज़कात देता हूँ, हज करता हूँ, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और जो इबादत की जो किस्में हैं उसमें से किसी और किस्म में शिर्क करता है। जैसे ज़बाह करना, ये अल्लाह के लिए होना चाहिए ज़बाह, लेकिन वो किसी गैरुल्लाह के लिए ज़बाह करता है, किसी वली के लिए, किसी ख़बर वाले के लिए, किसी फला फला के लिए करता है। या नज़र मानना, नज़र भी अल्लाह के लिए मानी जाए, यहाँ किसी और के लिए नज़र मानी जाती है, ये भी शिर्क की एक किस्म है। खौफ खाना, खौफ तो अल्लाह का होना चाहिए, लेकिन किसी और से खौफ खाया जाए, अगर मैं ये ना कर दूं तो बाबा फना पीर मेरा बिगाड़ देंगे, फना में मुझे, अगर मैं इनको खबर वाले को नाराज़ कर दूंगा तो मेरा कारोबार सत्यानाश हो जाएगा, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा। ये खौफ खाना, ये तमाम ये खौफ अल्लाह से खाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। रजा उम्मीद अल्लाह ही से रखनी चाहिए, हमको उम्मीद यकीन होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, लेकिन किसी और से उम्मीद रखे कि फ़ला भी हमारी मदद कर सकता है, फ़ला भी हमको औलाद दे सकता है, फ़ला भी हमको नुकसान से बचा सकता है, फ़ला भी हमको कारोबार में तरक्की दे सकता है, फ़ला मज़ार पे चले जाएं, फ़ला दरगाह पर चला जाएं, फ़ला उर्स में शरीक हो जाएं, ये तमाम चीज़ें शिर्क कहलाती। मोहब्बत जो हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत हकीकी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा किसी और से मोहब्बत, जो गैरुल्लाह से मोहब्बत जिसे कहा जाता है, बुतों से मोहब्बत, कब्रों से मोहब्बत, ये झूठे जाली पीरों से मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें शिर्किया की किस्में हैं, हम तमाम को इससे इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि इसी बिना पर बताया गया कि शिर्क एक अजीम गुनाह है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है मेरे भाई। पहला सबब यह है कि शिर्क से हकीकत में खसाइस उलूहियत के अंदर खालिक से मखलूक की तशबीह लाजिम आती है, लिहाजा जिस किसी को अल्लाह के साथ शरीक किया तो हकीकत में उसने इस चीज़ को अल्लाह के मुशाबे ठहराया, और ये जुल्म अजीम है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। यहाँ क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ जो है कि उसकी इबादत की जाए, यही हक़ है। अगर उसका हक़ छीन कर किसी और के साथ किसी और को दिया जाए तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म है, इंसाफ नहीं है, जुल्म कर रहे हैं हम। इसलिए हमको चाहिए कि अरबी ज़बान में कहा जाता है जुल्म की तारीफ वज़उ शैइ फ़ी गैरि महल्लिही, कि
जिस चीज को जहां पर रखना है उसको हटा कर किसी और चीज की जगह पर रखते हैं तो उसको कहा जाता है जुल्म, जुल्म कहा जाएगा। तो यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म किस तरीके से होगा शिर्क में, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक यह है कि उसी की इबादत की जाए, उसी से मांगा जाए, उसी के आगे सर को झुकाया जाए, उसी से गिड़गिड़ाया जाए, उसी से दुआ की जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो कुफार है, वो अल्लाह ताला का हक किसी और को देते हैं। तो ये शिर्क है। इसलिए शिर्क क्या है, सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म किसे कहते हैं, मैंने अभी जैसा कि तारीफ अरबी में भी आपको मुहावरा कह के बताया है, किसी चीज को उसकी अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह में रखना। पर जिसने गैरुल्लाह की इबादत की तो हकीकत में उसने इबादत को उसकी अपनी हकीकी जगह से हटाकर दूसरी गैर हकीकी जगह पर रख दी। इस तरह उसने गैर हकदार की तरफ फेर दिया, और ये सबसे बड़ा भारी जुल्म है। बात वाज़ेह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है इबादत उसकी की जाए, लेकिन गैरुल्लाह की अगर कोई इबादत करता है तो गैरुल्लाह गैर हकदार हुआ इबादत का, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा सबब है कि अल्लाह ताला ने खबर दिया है जिसने शिर्क किया दुनिया में और फिर तौबा नहीं की, उसे बरोद क़यामत अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने वालों को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्शता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे, शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा। उसके अलावा जितने गुनाह हैं अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, चाहे तो माफ करे, चाहे तो अजाब देकर फिर जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन मुशरिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरा देखिए, जैसा कि आपको अभी बात वादे हो जाएगी, तीसरा सबब यह है कि अल्लाह ताला ने खबर दी है कि जन्नत को मुशरिक पर हराम करार दिया है और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है, यकीन मानो जो अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर दिया है, उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है और गुनाहगारों के लिए की मदद करने वाला कोई नहीं है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ये जालिम से मुराद कौन है, यहाँ मुशरिक लोग हैं, उनका मदद करने वाला क़यामत के दिन कोई नहीं होगा। मोहतरम सामीन, ये तीसरा सबब था कि मुशरिक हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। चौथा सबब ये है कि शिर्क के तमाम नेक अमाल को मिटा देता है। शिर्क, अगर शिर्क है, मुशरिक है, तो क्या करता है, वो पहाड़ के बराबर भी नेकियां कर ले तो उसके नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई फायदा उसको नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनाम की आयत नंबर देखिए 88 में इरशाद फरमा रहे हैं, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह की हिदायत ही है जिसके जरिए अपने बंदों में से जिसे चाहे वो हिदायत देने वाला है। हिदायत का देना अल्लाह के हाथ में, इसलिए हम तमाम को अल्लाह से हिदायत तलब करनी चाहिए। हम सूरह फातिहा में, नमाज में मेरे भाई, हम कितनी दफ़ा हर फ़र्ज़ नमाज में 17 मरतबा हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो ये मालूम हुआ कि हिदायत का देना अल्लाह के हाथ में है। आगे बताया यहाँ, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर फर्दन ये हज़रात भी शिर्क करते तो कुछ ये अमाल करते वो सब अकारत कर दिया जाए, जो कुछ वो अमाल करते हैं। यानी एक मुशरिक है, उसके तमाम अमाल जो नेक अमाल भी होंगे वो अकारत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है कि अगर आपने शिर्क किया तो बिलाशुबा आपके अमल ज़ाय हो जाएंगे और बिल यकीन आप ज़ियाकारों में से हो जाएंगे। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी अगर शिर्क करेंगे तो आपके भी तमाम अमाल को अकारत कर दिया जाएगा और आप भी खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मोहतरम सामीन, मैं यहीं अपनी बात को रोकता हूँ आज का दर्स को, ताकि आप लोग ये दर्स का मुराजा करें
اور इंशाल्लाह अगले दर्स में आपको यहाँ 5वीं जो सबब है उससे आगे बढ़ाएंगे। तो आज आप लोगों ने सीखा कि शिर्क कितना बड़ा जुल्म है, शिर्क कितना बड़ा अजीम गुनाह है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो बहुत बड़ा जुल्म है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, और मुशरिक पर जन्नत हमेशा हमेशा के लिए हराम है, और मुशरिक के तमाम नेक अमाल अल्लाह के पास कोई कदर मंजिलत नहीं रखते, बल्कि वो अकारत कर दिए जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ये इतना बड़ा संगीन गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शिर्क के तमाम अक़साम से अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को किताब और सुन्नत का सही फ़हम अता फरमाए और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।